Hello and welcome everyone. This is Abhishek Tiwari here. Dear students, today I'm going to start a very fresh and new chapter for you, and this is Mother's Day. Dear students, Mother's Day is a very beautiful art of literature which has been, written by J.B. Priestley. So, students, here in this story, I'm going to tell you about okay a very humorous and satirical display of the status of a mother or a woman in a house, okay, especially a mother frame. Okay, so how does they are being treated in a family, you and me, everyone knows it, everyone know it. Okay, in every family, a household lady, a household worker, who is often called mother, okay, she does not pay even for her entire day to day work. Okay, whether she works for 24 hours, whether she works for 1 or 2 hours, she might not be paid for any of her task. Even not only paid, but also she does not get the proportional respect that she deserves. Okay, so this story is nothing but really it's just the portrayal or the depiction of that same status of mother in a family, where a lady who was same as usual in every human, especially Indian family, she has been done here. She has been given actually the same thing here. So uh, this lady, she is uh, you know she finally, in a with a trick, she gave a complete message to her family. Okay, uh, and taught everyone how to behave with mothers in a family, where each and uh, everyone seems like that she is nothing but a servant and they all come and advises or orders her to do work. Okay, or just sometime, very rigidly they give a deadline to do that work. Okay, often as if they are paying her salary for her job. Okay, and without respect they treats with her. so so this is what, the summary of this short, introduction of this story, Mother's Day. So we would see here the entire things in great details. This is a very beautiful play, okay, where several characters are there. Let me introduce you the all characters of this play. Okay, so in this play, the main character is Mrs. Annie Pearson. Okay, her husband Mr. George Pearson, her daughter Doris Pearson, and her son Cyril Pearson. Okay, but not the least. Okay, last but not the least, Mrs. Fitzgerald. She is a palmerist. She is a magician. Okay, and a very interactive woman in this play. You would definitely understand the role of this lady in this play, how beautifully she massaged everyone in Pearson's family. Okay, to respect and to respect and obey the lady who is in a single frame mother. Okay, so a very beautiful play which is here. I'm just going to explain you right now. Okay, so let's see everyone the explanation. You would definitely know what exactly the sense of it, but don't leave even a single video. Okay, you would definitely enjoy this. Okay, dear students, मैं अभिषेक तिवारी आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन सेशन में और वीडियो सेशन में, जहाँ पे मैं आपको आज मदर्स डे नाम की एक स्टोरी जो है वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ठीक है, ये जो स्टोरी है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्या करता है, ये एक समाज में जो महिला के रूप में एक माँ का फ्रेम होता है, जो उसका एक शेप होता है, जो इसका चेहरा होता है, उसको वास्तव में उजागर करता है, उसको एक्सप्लेन करता है. ठीक है, कि हाउ रिजिडली वुमेन इज
ट्रीटेड इन अ फैमिली, कितनी कठोरता से एक महिला के साथ परिवार में उसके साथ बिहेव होता है। परिवार का हर सदस्य उस माँ से जो है बस ऑर्डर देता है, आदेश देता है, सलाह देता है काम करने का। हद तो ये भी हो जाती है, कभी कभी डेडलाइन देते हैं कि काम अब तक हो जाना चाहिए, और उसके बदले फिर माँ को ही गलत अच्छा बुरा सुनाते हैं। ठीक है, बिना चिंता किए कि वो बिना सैलरी के 24 घंटे है लोगों की सेवा में तत्पर रहती है। उसे कम से कम सैलरी नहीं तो सम्मान की वह सम्मान की प्रतिभागी होती है, वो सम्मान की जो है डिजर्व करती है। तो ये इस चीज़ को जो है ना मिसेस फिट्जराल्ड और मिसेस पियर्सन दोनों लोग मिल करके ना प्लान करती हैं, स्पेशली मिसेस फिट्जराल्ड के एम्फेसिस की वजह से। तो अब उस पे लास्ट में जाकर के एक मैसेज मिलता है फैमिली को। ठीक है, पूरी फैमिली को एक मैसेज देती है मिसेस फिट्जराल्ड कि कैसे परिवार के साथ या माँ के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए एक फैमिली में। तो ये चीज़ है, मैं समरी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सस्पेंस रहेगा जिससे कि आप स्टोरी को एंटरटेन कर सकें। राइट, सो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी विदाउट वेस्टिंग टाइम। वन मोर रिक्वेस्ट टू यू कि आप इस लेक्चर का एक भी पोर्शन, एक भी वीडियो सेगमेंट आप ड्रॉप मत करिए। You will get a very interesting video series here. Okay, let's begin everyone. Okay, so the action takes place in the living room of Pearson's house. Okay, in a London suburb. Suburb means होता है बच्चों सब अर्बन। ओके, सब अर्बन। ठीक है, सबर्ब मतलब सब अर्बन। तो एक सब अर्बन जो है मतलब कि आधा शहरी आधा ग्रामीण टाइप का एरिया जो हो, ऐसे सब अर्बन न, बहुत कंप्लीटली शहरी ना हो। तो इस तरह का एक लंदन सबर्बन एरिया है, और वहाँ पे मिसेस पियर्सन का घर है। वहाँ उनके रूम का एक सीन है, लिविंग रूम में जो है का सीन स्टार्ट होता है वहीं से। ठीक है, सो मिसेस पियर्सन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, सीन स्टार्ट होता है। आफ्टरनून, दोपहर का समय है। इट इज़ अ कंफर्टेबली फर्निश्ड, पूरी तरीके से जो है फर्निश्ड मतलब हर तरह के फर्नीचर्स लेके हर एक चीज़ को वेल फर्निश्ड है घर में। मच लीव्ड इन रूम इन अ स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला। ठीक है, मच लीव्ड इन रूम मतलब कि घर में स्पेस बहुत है, कमरों में जगह बहुत है जो है ना। एक छोटे से सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला है, मतलब कि आधा डिटैच मतलब अलग हुआ सा, एकदम अकेले से बना हुआ एक विला है, एक बंगलो है, एक हाउस है। ओके, इफ़ नेसेसरी, ओके, अगर आवश्यक हो, ओनली वन डोर नीड टू बी यूज्ड, तो केवल एक दरवाज़ा खोलने की आवश्यकता होती है। बट इट इज़ बेटर विथ टू, लेकिन दोनों दरवाज़ों के साथ अच्छा है अगर दोनों खुले रहें तो। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर, एक ऊपर की ओर खुलता है जो फ्रंट डोर की ओर जाता है। एंड द स्टेयर्स एंड द अदर इन द राइट वॉल, और एक दूसरा जो दरवाज़ा है वो सीढ़ियों से होकर जो है राइट वॉल की तरफ, दाहिने दीवार की तरफ जाता है। लीडिंग टू द किचन एंड बैक डोर, जो किचन और बैक डोर की ओर जाता है। देयर कैन बी अ मुस्लिन कवर्ड विंडो। ओके, मुस्लिन मतलब कि पर्दे लगे हुए हैं, कवर्ड विंडो हैं। ठीक है, इन लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल, और एक राइट वॉल पे भी संभवतः एक खिड़की है, उस पर भी पर्दे लगे हुए हैं। टू, द फायर प्लेस इज एज्यूम टू बी इन द फोर्थ वॉल। ठीक है, फायर प्लेस जो है, अंगीठियाँ जलाई जाती हैं यूरोप के घरों में, घरों को गर्म रखने के लिए जमीन दीवारों में ऐसे खोद कर जगह बना करके। तो वो फायर प्लेस जो है वो माना जाता है कि वो चौथी दीवार पे होगा, ऐसा वो एज्यूम करता है। देयर इज अ सेटी अप राइट। ठीक है, एक सेटी मतलब सोफे का एक सेट पूरा लगा हुआ है राइट में। एन आर्म चेयर, एक आर्म मतलब जिसमें हाथ रखते हैं कुर्सियों पे, आर्म चेयर लेफ्ट में है। एंड वन डाउन राइट, और एक जो है सामने राइट की तरफ, नीचे की तरफ है। ओके, अ स्मॉल टेबल विथ टू चेयर्स, इसके अलावा एक छोटा सा जो है टेबल है जिस पे जहाँ दो चेयर्स लगी हुई हैं ऑन ईदर साइड, दोनों साइड में। ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर, ये सब चीज़ें जो है सेंटर में दिखाई पड़ रही हैं। दिस इज द सीन ऑफ द लिविंग रूम। ओके, फर्दरमोर व्हेन द कर्टन राइजेस, जब इस प्ले का पर्दा उठता है, इट इज़ एन आफ्टरनून इन द अर्ली ऑटम, तो शुरुआती पतझड़ के मौसम के दोपहर है। एंड द स्टेज कैन बी वेल lit, और जो स्टेज है वो अच्छे से लाइटेड है, मतलब वहाँ लाइट खूब जल रही है। मिसेस पियर्सन एट राइट, राइट में मिसेस पियर्सन है, एंड मिसेस फिट्जराल्ड एट लेफ्ट, और मिसेस फिट्जराल्ड लेफ्ट में बैठी हुई हैं, आर सिटिंग अब ऑपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल, एक छोटे से टेबल के, ठीक है, ऑपोजिट दोनों डायरेक्शन में दोनों लोग बैठी हुई हैं।
ऑन विच आर 2 टी कप्स, जिसके ऊपर 2 चाय के कप्स रखे हुए हैं, एंड शॉकर्स और प्लेट रखी हुई है, एंड द कार्ड्स विथ विच मिसेस फिट्जराल्ड हैज बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्च्यून। और इसके अलावा टैरो कार्ड्स, एज पाल्मरिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर टाइप की हैं मिसेस फिट्जराल्ड, ठीक है। टैरो कार्ड मतलब जो भाग्य बताती हैं, ठीक है। तो उस तरह से जो है आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा ना कि आता है वो भाग्य फल आता है, तो वैसे ही टैरो कार्ड रीडर भी हैं मिसेस फिट्जराल्ड। तो उनके टैरो कार्ड्स जो है वो पड़े हुए हैं टेबल पे, हैज़ बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन फ्यूचर, जिससे वो मिसेस पियर्सन का फ्यूचर बता रही हैं, ठीक है। मिसेस पियर्सन इज अ प्लीजेंट बट वरीड लुकिंग वुमेन इन हर 40s, ठीक है। मिसेस पियर्सन जो हैं वो एक खुशनुमा सी लेकिन चेहरे पे एक चिंता से दिखाई देने वाली 40 से 50 वर्ष के बीच की एक महिला है, ओके। मिसेस फिट्जराल्ड इज ओल्डर, मिसेस फिट्जराल्ड बड़ी है उम्र में, हैवियर भारी भी हैं थोड़ा शरीर से, एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड सिंसिटर पर्सनैलिटी, और एक मजबूत और चालाक सी जो है एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनैलिटी है। शी इज स्मोकिंग, वो स्मोकिंग कर रही हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस, ओके। ये बहुत आवश्यक है दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइसेस, कि ये दोनों जो है निश्चित रूप से होनी चाहिए, एकदम से जो है विपरीत आवाज़ें दोनों होनी चाहिए, ठीक है, दोनों की। क्योंकि वो एक बोल्ड है और दूसरी थोड़ी शाय और वरीड लुकिंग है, तो दोनों की आवाज़ में अंतर तो होना ही चाहिए, बिल्कुल साहब। सो मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट, मिसेस पियर्सन जो है वो हल्के साउंड में बोलती हैं, फ्लरीड शॉर्ट ऑफ टोन, ठीक है। और थोड़ा सा जो है अपनी टोन को यू नो अपनी टोन को जो है थोड़ा सा जो है इसमें अगर हम बात करें, जिसको हम कह सकते हैं ना एक तरह से कि चिंतित सी, व्याकुल सी, फ्लरीड, शॉर्ट ऑफ टोन जो है वो उनकी वॉइस होती है, विथ अ टच ऑफ सबर्बन, जिसमें एक सबर्बन एटिक का जो है टच होता है, मतलब कि ना सबर्बन कॉकने परहैप्स, ठीक है, कॉकने एक साउंड होती है, एक वॉइस होती है इस तरह का उसके। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग बोलियां बोलते हैं, तो ऐसे उसके अंदर उसकी भाषा में ये फ़र्क दिखाई पड़ता है। एंड मिसेस फिट्जराल्ड विथ अ डीप वॉइस, और मिसेस फिट्जराल्ड जो होती हैं उनकी एक गहरी, रदर आयरिश परहैप्स ना, और कॉकने के बजाय यहाँ पे वो आयरलैंड वाली थोड़ी सी टोन है उनकी, आयरिश थोड़ी शायद उस भाषा में जो है बोलती हैं वो। तो दोनों के ये एक कैरेक्टर में दोनों के डिफरेंसेस आपने जान लिया। अगर डिफरेंसेस लिखने को आए तो आप इसके बेसिस पे जो है इसको पोर्ट्रे कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव फॉर द स्टूडेंट्स एंड टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स। मिसेस फिट्जराल्ड, यहाँ से इनकी कम्युनिकेशन शुरू होती है, कॉन्वर्सेशन शुरू होता है। मिसेस फिट्जराल्ड बोलती हैं, कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, कार्ड्स को इकट्ठा करते हुए बोलती हैं, एंड दैट्स ऑल, ओके, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, कहती है कि बस अब यही मैं आपके बारे में कह सकती हूँ मिसेस पियर्सन। कुड बी ए गुड फॉर्च्यून, आपका एक अच्छा भाग्य हो सकता है, कुड बी ए बैड वन, और एक बुरा भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, अब ये सब कुछ सिर्फ आप पर निर्भर करता है। मेक अप योर माइंड एंड देयर इट इज, कहती है अपना मन बना लो और सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। मिसेस पियर्सन बोलती हैं, यस थैंक यू मिसेस फिट्जराल्ड। मिसेस फिट्जराल्ड के रिस्पॉन्स करते हुए उनको थैंक यू बोलती हैं, कहती हैं आई एम मच ऑब्लाइज्ड, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, आई एम श्योर, निश्चित रूप से, ओके, इट्स वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, ठीक है। कहती है बड़ा अद्भुत अनुभव है ये कि वास्तव में एक सही मायने में फॉर्च्यून टेलर, भाग्य बताने वाला मेरे बगल में ही रहता है, मेरे पड़ोस में रहता है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, ठीक है। वो कहती है डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या तुमने ये जो फॉर्चून टेलिंग है इसको तुमने पूर्व के देशों से सीखा है, मिसेस पियर्सन ऐसे पूछती हैं, ठीक है, मिसेस फिट्जराल्ड से। सो मिसेस फिट्जराल्ड आंसर करती हैं, ओके। अब इसके आंसर को स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट डे जो है कवर करेंगे। होप आपको ये छोटे छोटे वीडियो सेगमेंट्स पसंद आएंगे, इसीलिए मैं आपको यहीं पे रोक रहा हूँ। इसके आगे कम्युनिकेशन जो है या कॉन्वर्सेशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रोसीड करेंगे, ओके। दिस इज व्हाट द लेक्चर टुडे, थैंक यू, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड इट, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।